Assalamu alaikum class. As in our tomorrow class, tomorrow lectures, we are discussing about how climate affect our crop, how climate impact our crop, and how crop change and evolve according to the climate. Like some are the structural modifications and some are the physiological modifications. So two types of effects are seen on the crops. The first one is the seasonal effects and second one is the extreme effects. Seasonal effects. Actually, seasonal effect when the carbon dioxide is increased is reduce the water usage, increase of temperature, lower rainfall and drought, pest and weeds. These all are the seasonal effects, which maybe affect the crop in one season, but maybe in the next season they not affect. Like the in one season, like in 2000, if we say that in now in this year 2021, the rain is more in our areas, but if we talk about the 2018, 2017, the 2017 especially the rains are less rainfall affect our crop production yield. So these all factors are the only for a one season or maybe a two season, but not of the prolonged or permanent effects on the plants. So far, the insect pests are also a seasonal effects. Maybe if we change the crop pattern or the crop time, like a few months, like 1 month or the few days earlier, or a 1 month or the few days late, then maybe the insects or the pest can't attack on that season, because insect pest attack on a specific time of the crop. Like some insect attack on their reproductive stage, some effect on their morphological stage. So there are stage specific actually insect and pest, and diseases are also a stage specific or condition specific, environment specific. While the extreme effects include the poor crop establishment, heat shock events affect the grain, fruit set and quality, and pest epidemics. लाइक कोई भी एपिडेमिक्स आ जाती है पेस्ट वगैरह की, तो वो एक प्रोलॉन्ग एक इफेक्ट होता है उसका, और एक एक्सट्रीम लेवल का इफेक्ट होता है. हीट शॉक है कि अगर हीट शॉक में प्लांट इफेक्ट हो तो प्लांट का फ्रूट ग्रेन वगैरह सारा कुछ उससे इफेक्ट होगा. और इन एक्सट्रीम इफेक्ट से जो क्रॉप है वो भी हमारी पूरी इस्टेब्लिश होगी और यील्ड में काफ़ी सारा लॉस आएगा. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उसके क्रॉप पे सम इफेक्ट्स होते हैं. A number of variables that determine how much plants can grow is known as the climate change effects. At the same time, extreme temperatures and decreases in the water availability and changes to the soil condition will actually make it more difficult for plants to thrive. उसी वक्त और उसी टाइम पे जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो, एक्सट्रीम हो, तो वाटर की अवेलेबिलिटी में कमी होगी और ये चेंज करेगी सॉइल कंडीशन को, जिससे प्लांट्स जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा सरवाइव करना या अपने आप को मेंटेन रखना. सो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू स्टंट द प्लांट ग्रोथ. सो हम इसको कह सकते हैं कि ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज है उससे क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है. अब डेजर्ट अडाप्टेशंस क्या है. डेजर्ट में जो प्लांट सरवाइव करना चाहते हैं, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, उनमें अडाप्टेशन कौन सी होंगी. स्मॉल लीव्स होंगे, लीव्स पे स्पाइंस होंगे,
अब स्मॉल लीफ से क्या होगा कि जितना लीफ एरिया कम होगा उतनी एवेपोरेशन कम होगी और पानी का कम से कम लॉस होगा, उससे पानी कंजर्व होगा। इसके अलावा उनकी वैक्सी जो थिक स्किन भी थिक होती है, आप कैक्टस वगैरह को देखो काफ़ी थिक स्किन होती है ताकि जो वाटर लॉसेस है वो कम से कम हो सके, जो है वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सके। Then roots near the soil surface soak up rainwater quickly before it evaporates. अगर कभी रेन हो भी जाए तो जो रूट्स हैं वो, एक तो डेजर्ट वाले प्लांट्स की रूट्स डीप नहीं होती, ऊपर ऊपर होती है ताकि सॉइल पे जो भी पानी गिरे वो जल्द से जल्द उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जो पानी है वो एवेपोरेट ना हो सके। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें डेजर्ट की adaptations में टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, स्मॉल लीव्स एक्चुअली कंजर्व द वाटर, थिक क्यूटिकल आल्सो कंजर्व वाटर, देन roots near the soil surface is actually refers to the absorption of the rainwater before its evaporation. Then grassland adaptations. अब deep roots help plants survive priority. एक्चुअली इट्स मीन के डीप रूटेड प्लांट्स होंगे ग्रास लैंड में। उसकी रीज़न क्योंकि जब एनिमल्स के झुंड वगैरह को जब छोड़ा जाता है ग्रास लैंड में ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए, तो वो इतना मतलब पुल करें प्लांट्स को, जितना भी वो ऊपर से प्लांट्स को पुल करके खाने की ट्राई करें, प्लांट्स जो है वो अपनी उसकी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर काफ़ी धंसी हुई हों, काफ़ी मजबूती से इंटरेक्ट हों, ताकि जो वो हैं वो प्लांट्स को खींच ना सके, वो इजीली ऊपर से खाएं, प्लांट्स जो है उसके रूट्स अंदर ही रहें और वो इजीली रीग्रो कर ले। देन ग्रास लैंड में भी एक्चुअल सोर्स पानी का बारिश ही होती है, तो इसलिए वहाँ पे भी नैरो लीव्स को रिकमेंड किया जाता है। देन फ्लेक्सिबल स्टेम्स, क्योंकि जो ग्रास लैंड होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तूफान वगैरह आते हैं, काफ़ी हैवी जो विंड चलती है, तो इस वजह से रिकमेंड किया जाता है कि फ्लेक्सिबल स्टेम हो ताकि वो इजीली बेंड हो जाए अगर हवा आए तो, क्योंकि जितने वो हार्ड फॉर्म में होंगे तो हवा से उनको टूटने का अंदेशा होगा। देन रेन फॉरेस्ट जो है उनके अडॉप्टेशन में प्लांट्स का स्मूथ हैं, स्लिपरी बार कीप्स वाइन्स फ्रॉम किलिंग द ट्रीज। स्मूथ होते हैं और उनकी स्लिपरी बार्क होती है, यानी जो ट्री है उसका जो ऊपर पोर्शन होता है, जो उसकी बार्क होती है, जो उसकी छाल होती है, वो एक्चुअली स्लिपरी हो। स्लिपरी होने का मकसद यह है कि वहाँ पे काफ़ी सारी वेन्स होती है ताकि कोई भी वेन्स जो है वो उस दरख्त पे चढ़ के और उसको डैमेज ना कर दे। जैसे जैसे वो वेन्स दरख्त की सराउंड को लिपेटती जाएगी, जो दरख्त है उसकी जो है वो लाइफ जो है वो कम होगी। स्पेशली यंग ट्रीज कह लें आप। Then slide shaped leaves lets rain run off so fungus does not grow on the plant. Then इनके जो leaves होते हैं वो slide shape होते हैं। Slide shape means कि जैसे ही उन पे जो rain है, वो बारिश है, उसका कतरा गिरे वो स्लिप होके नीचे सॉइल में जज्ब हो जाए। अगर वो प्लांट के लीव्स के ऊपर इंटैक्ट हो जाता है, प्लांट्स के लीव्स स्लिपरी नहीं होते, ऊपर इंटैक्ट हो जाता है रेन, तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स में जो है वो फंगस ग्रो हो जाती है। देन टुंड्रा एडॉप्टेशंस, ये भी एक एरिया होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड फॉर वार्मनेस। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इसमें जो हाइट में इतने ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल ग्राउंड के साथ ही लगे होते हैं। डार्क कलर फ्लावर लगाते हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे सन से, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बहुत ठंडा मौसम होता है। टुंड्रा मीन कोल्ड एस्ट आप कह ले। तो रीज़न ये होती है कि वहाँ पे छोटे प्लांट्स जो है अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अपनी हाइट को मॉडिफाई करने के लिए एम ये होता है कि वो ग्राउंड के साथ रहे, ग्राउंड की जो हीट है वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो, जो ग्राउंड है वो काफ़ी वार्म रहे, वो गर्म रहे। सेकेंडली जो इसके डार्क कलर इसमें फ्लावर्ड होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके।
फजी स्टेम होता है जो प्रोटेक्शन करता है विंड के साथ. फजी स्टेम इज फ्लेक्सिबल स्टेम. देन आता है टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसमें जो सर्दियों में जो लीव्स हैं वो शेड ऑफ कर जाते हैं. तो इसमें क्या है कि थिक बार्क प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड ड्रॉपिंग द लीव्स इन विंटर कंजर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर्स. इसमें जो ट्रीज होते हैं उनकी जो बार्क होते हैं वो काफ़ी थिक हो जाती है ताकि वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह को स्टोर कर सके ड्यूरिंग द कोल्ड. क्योंकि कोल्ड में लीव्स वगैरह शेड हो जाते हैं तो न्यू सोर्स नहीं होता फोटोसिंथेसिस वगैरह का, तो इसलिए थिक बार्क होगी तो उसके अंदर जो वाटर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंजर्व रहेंगे. अब how greenhouse gases affect our agriculture. Actually, the amount of greenhouse gases in the atmosphere is directly related to the temperature of the atmosphere. Increase the concentration of greenhouse gases, increase the temperature of the atmosphere, leading to the warming of the earth surface. कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं हमारे सॉइल के टेम्परेचर से. As much amount of green gases increase, the temperature of the soil is automatically increase. So with this increase of temperature, there is a lot of climate issue like plant survival, food insecurity, the rains problems, so and many all community I think affected by this greenhouse gases, greenhouse gases effects. So that's all for how plants adopt themselves for the betterment of their life. And this is our last lecture of this semester.